जैसा आप बोल रहे हो ना, वन साइज फिट ऑल अप्रोच नहीं है। आंसर राइटिंग, इंटरव्यू दोनों में इंपॉर्टेंट है आर्टिकुलेशन। लास्ट ईयर का इंटरव्यू वाज मोर फोकस्ड, कितना स्माइल करना है, कितना सिंसियर एक्सप्रेशन रखना है। ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हो एंड देन यू आर अपीयरिंग फॉर द सेम एग्जाम। जी, थोड़ा मुझे लगता है लक का फैक्टर भी हाँ, हाँ। कि हम लोग एक दूसरे को पहले से भी जानते हैं। यू हैव बीन द कैप्टन ऑफ द फुटबॉल टीम आल्सो एट आईआईटी। इंटरव्यू में आपसे हेल्प ली थी लास्ट ईयर। हाँ, क्या करें अब लास्ट मोमेंट्स में, इन 7 दिनों 8 दिनों में जितने बचे हैं अब। रिवाइज करो और पढ़ते रहो बस। Hello everyone, today we have Advait Singhai with us. This year he has again cleared UPSC. Last year he cleared the UPSC with rank 242 and this year he has cleared the exam with rank 138. The best thing to know about this is the interview. Last year he scored one of the highest marks in interview with 212 and this year with 211. So of course interview is a thing that he has obviously cracked apart from the prelims and mains. So today we will have the conversation with Advait, how he has prepared, how he has moved forward, what are the learnings from the journey that we can also understand. So Advait, कैसा गया, कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और ऑब्वियसली रिजल्ट है तो अच्छा भी लग रहा है, पूरी जर्नी को क्लोजर मिला है, तो इट्स अ गुड फीलिंग ओवरऑल। We met last year before interview. उस साल से और इस साल में खुद की प्रिपरेशन में, और मतलब क्योंकि आपके मल्टीपल अटेम्प्ट्स थे, है ना, और ऑब्वियसली हमने इस बार देखा भी सारे मल्टीपल अटेम्प्ट्स के ही लोग ज़्यादातर सिलेक्ट हुए हैं। सो क्या इस जर्नी से क्या सीखा, मतलब तीनों लेवल पे आप आराम से एकदम प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, उस लेवल पे क्या कैसे गाइडेंस मिली, सेल्फ मोटिवेशन, एक्सटर्नल हेल्प, हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर प्रीलिम्स, मेंस, क्योंकि अब जैसे प्रीलिम्स बहुत डाइसी है और प्रीलिम्स इज जस्ट कमिंग, सो व्हाट इज योर एडवाइस फॉर द सेम? Sir, over the years, I have realized that for preparing for this exam, it is very important to prioritize what you want to memorize. Okay. Which is especially important for prelims, because the questions are such that some questions are ambiguous. So you have to prioritize which questions and which subjects you want to put your effort into. So that was a key learning, how to prioritize. And second, sir, how to organize my schedule in order to study for all the three stages of exam, which have very different requirements. हाँ, मतलब दो इट इज इंटीग्रेटेड बट डिफरेंट है, हर लेवल पे डिफरेंट। So, for example, broadly, जैसे prelims में it's more factual, we have to memorize more. Mains में it's about writing. It is less factual, more elaborate. For interview, it is your conceptual clarity, how you convey your points. And it is less what you study for mains and more practical. Again, practical, like what you would want to do in order to solve a problem, rather than bookish knowledge which you would write in a paper. ओके। और इंटरव्यू का कोई ऐसा किस्सा इस बार जो हुआ हो, पिछली बार जो हुआ हो, क्योंकि दोनों बार अच्छे नंबर आए तो इसलिए उस टेंस में, क्योंकि हर बार ये लगता है कि थोड़ा ज़्यादा अगर हम लोग फोकस्ड रहेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस बार ऐसा क्या करा कि मतलब, या आपके एक्सपीरियंस क्या रहा कि एकदम फोकस्ड इंटरव्यू था कि थोड़ा हंसी मजाक भी था बीच बीच में? Last year the interview was more focused. अच्छा। It was more diverse and it was more related to what I had written in my DAF and to current affairs. This year the interview was less focused on my DAF, less on current affairs, more random questions. इस बार का एक इंसिडेंट इंटरव्यू का जो मेरे को अभी भी मेरी मेमोरी में इम्प्रिंटेड है, which was how the interview started. So I worked in Boston Consulting Group for a while before I started preparing. And the chairperson of the panel, Sanjay Verma sir, he started the interview by saying that you are from Boston. So are you aware of a person called Boston Strangler? He was a serial killer. And he started the interview by saying that I'll start the interview on a morbid tone with a morbid question. अच्छा। I was not expecting such a random question, but I was able to answer and I was able to go forward with that question, which I think worked in my favor because it set the tone of the interview. हाँ, फिर वहाँ से वो वैसा ड्राइव हो जाता है। हाँ। ओके। और दूसरे जैसे हम लास्ट डे भी डिस्कस करते ही थे कि जयकृत सर ने कुछ इनसाइट दी थी कि जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन आए तो कुछ याद करना, है ना, और फिर वो अपना बताना कि जिससे द मूड गेट लाइटन्स फॉर योर, क्योंकि आपको भी अपना काम मेंटेन करना है फॉर द नेक्स्ट 25-30 मिनट्स जब तक इंटरव्यू चलेगा। तो सर इंटरव्यू में जस्ट फॉर एग्जांपल मेंस और इंटरव्यू में एक सब्सटैंशियल डिफरेंस है कि यू आल्सो हैव टू प्रेजेंट योर आंसर इन पर्सन, सो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट हाउ यू सेट, what is your body language, what are the words that you choose
while thinking on your feet. उस पे तो बहुत काम गया था, मेरे को लगता है कि उस पे तो, था क्योंकि स्टार्टिंग में जब आए थे वो, कि हमें एक्सपोजर होता भी नहीं है, हम आते हैं और हम बैठ जाते हैं, हमें जैसे हम यूजुअली टाइम में रहते हैं वैसे ही हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं, करेक्ट. पर वो समझना कोई बता दे तो वो एक लाइफ इजी हो जाती है उसके बाद. हाँ. तो जनरल डिमीनर ड्यूरिंग योर इंटरव्यू, कितना स्माइल करना है, कितना सिंसियर एक्सप्रेशन रखना है, तो ये सब भी इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू में, इन एडिशन टू योर कंटेंट, द कंटेंट ऑफ योर आंसर. ओके ओके. और मेंस के रिगार्डिंग जब आप प्रिपेयर कर रहे थे, है ना, कि मेंस करा, मल्टीपल मेंस लिखे, हाँ. सो मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट से लेके, फर्स्ट मेन से लेके और उसके बाद जो आगे के मेंस आए, इसमें क्या चेंज करा या क्या हेल्प करा, है ना, कि कुछ स्पेसिफिक हेल्प मिली या कुछ ऐसा करा, कुछ रेफर करा या खुद के नोट्स बनाए, क्योंकि वो होता है सारा कि स्ट्रैटेजी सबकी अलग अलग रहती है ना. सर मैंने तो खुद के नोट्स बनाए थे. अच्छा. और मेरा पढ़ने का अप्रोच ही ऐसा होता था, फ्रेमवर्क बेस्ड स्टडी करता था. कोई भी इशू पढ़ने से पहले दिमाग में उसका फ्रेमवर्क बना लेता था, और मेरे फ्रेमवर्क में फिर इंफॉर्मेशन फिल करूंगा. ऐसे कोई इशू पढ़ूंगा तो फ्रेमवर्क ऐसा बनाऊंगा कि इशू का करंट रिलेवेंस क्या है, चैलेंजेस क्या है, सोल्यूशंस क्या है, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है, इंटरनेशनल कन्वेंशंस क्या है, इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स क्या है. ओके ओके. तो इसी फ्रेमवर्क से सारे टॉपिक्स पढ़े. मतलब एक टेम्पलेट बना लिया था कि उसमें करना है. हाँ, मतलब इट बिकम्स इजी आल्सो. करेक्ट. और जैसे इस बार जो इंटरव्यू था तो वो ऑब्वियसली एकेडमी के साथ साथ था, तो इस बार के इंटरव्यू में कुछ एकेडमी से रिलेटेड क्वेश्चन या कुछ ऐसा कि आप तो ऑलरेडी सर्विस में हो, व्हाई डू यू वांट टू अपीयर, क्योंकि एक क्वेश्चन आ सकता है जी कि यार ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हो एंड देन यू आर अपीयरिंग फॉर द सेम एग्जाम. जी. ये क्वेश्चन तो मुझसे नहीं पूछा उन्होंने, सर्विस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे. अच्छा. जैसे मैं अभी IRS कस्टम्स इंडायरेक्ट टैक्सेस नारकोटिक्स में हूँ, तो पहला क्वेश्चन उन्होंने GST से रिलेटेड पूछा कि GST में करेंटली क्या चैलेंजेस हैं तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या मेजर्स ले सकते हैं उन्हें रिजॉल्व करने के लिए. फिर NDPS एक्ट में का प्रोसीजर है, पंचनामा बनाते हैं जब भी किसी को सस्पिशन रहता है किसी के, और वी before prosecuting we are supposed to make a panchnama during the scene, crime scene. Okay. उस पे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा. अच्छा. which was very technical, मतलब they got into a depth की डेप्थ में चले गए अंदर. Correct. which was also good because हम लोग अपने अकेडमी में सर्विस और ट्रेनिंग की ड्यूरेशन में कितना सिंसियर है, उसका भी असेसमेंट उनको लगता है ऐसे क्वेश्चन से. so because I was serious in my training, I was able to answer that question. हाँ, वरना वो भी रहता है कि एक बार ट्रेनिंग में सिलेक्ट हो गए तो फिर आराम से थोड़ी चिल लाइफ चल रही है. नहीं, वो बहुत सही रहा. और चेयरमैन कुछ स्पेसिफिक ऐसा सवाल पूछा, क्योंकि एक होता है ना कि चेयरमैन को आप थोड़ा खुश कर दो, तो बाकी बोर्ड मेंबर्स, क्योंकि चेयरमैन के हाथ में नंबर एट द एंड होता है, एवरीवन गिव्स द रिमार्क्स टू द चेयरमैन, तो उसमें कुछ ऐसा लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब सबके सवाल के जवाब नॉर्मली दिए या चेयरमैन खुश हो गया? सबके सवाल के जवाब नॉर्मली दिए. इन बोथ माय इंटरव्यूज आई थिंक 3 or 4 questions were there which I thought I answered very good, and after answering I saw the expression on their faces also, which was an expression of I cannot put it into words, but they were satisfied with the answer. Okay. Their face had that contentment feeling. हाँ, वो पता चल जाता है देख के कि हाँ कि ठीक है, they are impressed. Correct. And broadly दोनों इंटरव्यूज में 3-4 बोर्ड मेंबर्स के साथ ऐसा हुआ. हाँ, क्योंकि अभी हम बाहर ही बैठे थे तो हम यही डिस्कस कर रहे थे, कुछ तो क्रैक कर लिया है इंटरव्यू का नैक, जिससे थोड़ा मुझे लगता है लक का फैक्टर भी होता है इंटरव्यू में, कि वो कैसा क्वेश्चन पूछता है. उस दिन मेरे को वो क्वेश्चन ठीक हो गया. जैसे सेकेंड इंटरव्यू में बॉस्टन स्टैंडलर का क्वेश्चन था, कोइंसिडेंटली मुझे उसका आंसर पता था, तो टोन वैसा सेट हो गया इंटरव्यू का. अगर नहीं पता होता तो शायद टोन वैसा सेट नहीं होता. बट ब्रॉडली व्हाट आई थिंक इज कि इंटरव्यू के लिए थोड़ा कंसेप्चुअल नॉलेज स्ट्रांग होना चाहिए, आर्टिकुलेशन अच्छा होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए. बस बुकिश नहीं कि मेंस का आंसर नहीं लिखना है आपने को. कोई इंसान है जिसको 30 years ऑफ एक्सपीरियंस है, यू हैव टू टॉक टू, एंड इट इज मोर ऑफ अ कन्वर्सेशन, इट इज नॉट एन इंटरव्यू राउंड. इट इज नॉट अ क्वेश्चन आंसर round which tests your knowledge. It is testing your personality, and so you have to have a conversation with the other person. The other person should also get engaged in that conversation. How you respond, how करते वो सब बिल्कुल. और दो चीजें और मुझे एक ये बताओ कि जैसे आपने फिजिक्स ऑप्शन लिया, इट हैज नो ओवरलैप विद जीएस. मार्क में क्वेश्चन रहता है कि जीएस फिजिक्स में ऑप्शन नंबर भी डिसेंट आए, है ना, पहली बार से ज्यादा ही आ गए इस बार. और तो
क्या मतलब ऐसा रहता है कि आपको लगा कि नहीं यार मैं आर्ट्स का ऑप्शन लेता तो शायद बेटर रहता, या फिजिक्स डिड अ गुड जॉब फॉर यू? सर क्योंकि टाइम भी उसमें अलग से एलोकेट करना पड़ता है। करेक्ट, प्योरली अगर आउटकम बेसिस पे असेस करूं तो प्रोबेबली आर्ट्स का ऑप्शन लेना शायद ज़्यादा स्कोर कर पाता, बट मैंने फिजिक्स इसलिए चूज करा है क्योंकि एक तो मेरे को फिजिक्स में इंटरेस्ट था, और दूसरा मुझे लगा कि फिजिक्स में क्योंकि इंटरेस्ट है तो मैं बेटर परफॉर्म करूंगा, बट थोड़ा ऑब्जेक्टिव है इसका। प्लस मेरे को लगता है फिजिक्स थोड़ा फंडामेंटल सब्जेक्ट है, वो थिंकिंग को भी थोड़ा ब्रॉड करते हैं, बिल्कुल। which is why I chose physics. But objectively, if I had analyzed purely on the basis of which optional rewards more, so I am not sure if physics is the best optional. More so if you are not from a technical background. ओके, तो फिजिक्स पे क्वेश्चन आया इंटरव्यू में कुछ? सर इस बार नहीं था, लास्ट ईयर पूछा था। अच्छा। इस बार उन्होंने फिजिक्स से स्टार्ट करा कंटेक्स्ट बिल्ड करने के लिए, बट क्वेश्चन उन्होंने गवर्नेंस का पूछा। ओके, कि फॉर एग्जांपल ही स्टार्टेड लाइक कि इनर्शिया करके कॉन्सेप्ट है फिजिक्स, बिल्कुल बिल्कुल। बट उसके बाद उन्होंने बोला कि गवर्नेंस में भी इनर्शिया होता है, हाउ वुड यू ओवरकम इनर्शिया इन गवर्नेंस। तो इस बार फिजिक्स से बिल्कुल क्वेश्चन पॉलिसी इनर्शिया, इम्प्लीमेंट इनर्शिया, वो आपको सब बताना पड़ेगा कि किस लेवल पे कहाँ पे। क्या हाउ वुड यू ओवरकम इनर्शिया इन गवर्नेंस सेटअप। ओके, तो जैसे मैं आपको बता रहा था, मेंस और इंटरव्यू में यही डिफरेंस है कि मेंस में मैं जो आंसर लिखूंगा वो टेक्स्ट बुकिश आंसर एग्जैक्टली। नीति आयोग की रिपोर्ट में लिखा था कि अगर विजन डॉक्यूमेंट में ये बना कैपेसिटी बिल्डिंग करूंगा, इक्विपमेंट प्रोवाइड करूंगा, ऐसा आंसर लिखूंगा जो पढ़ के अच्छा लगेगा, बट नहीं लगेगा कितना प्रैक्टिकल है। इंटरव्यू में आपको ऐसा आंसर देना है थोड़ा प्रैक्टिकल, और वहाँ पे मेरे ख्याल से वो सब निकलता भी नहीं है। सेकंड ARC में सर ये लिखा है, NCRWC ने ये बोला है, वो निकलता भी नहीं उस समय, क्योंकि आप कन्वर्सेशन कर रहे हो तो हम नॉर्मल कन्वर्सेशन में ऐसी बातें नहीं कर पाते। और अगर आप करोगे तो उनको लगेगा यार क्या है, मैं कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ, ये मेंस का मुझे बिल्कुल। अगर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना होगा तो मैं रिपोर्ट थोड़ी इम्प्लीमेंट करूंगा। सड़क पे जिस दिन ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करना, हम सेकंड ARC लेके हाथ में चले गए उठा के कि देखो लिखा है आप, नहीं वो तो सही है, बिल्कुल सही है। और बाकी अद्वैत, ये क्योंकि हम लोग एक दूसरे को पहले से भी जानते हैं, तो बाकी क्या चल रहा है, फुटबॉल, हॉबीज, ये सब पे क्वेश्चन आया कि कुछ नहीं आया? सर फुटबॉल, क्योंकि यू हैव बीन द कैप्टन ऑफ द फुटबॉल टीम आल्सो एट IIT, GSEC भी आप थे, है ना? तो वो उसमें कुछ पूछा, क्योंकि वो भी एक बहुत अचीवमेंट, GSEC जिसको मालूम है वो पता रहता है कि इट इज अ गुड एंड अ वेरी टफ पोस्ट टू कम्पीट फॉर। सर वो पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पे तो क्वेश्चन नहीं था, बट फुटबॉल पे फर्स्ट इंटरव्यू में भी था। अच्छा, और सेकंड इंटरव्यू में भी क्वेश्चन था। अच्छा, फर्स्ट इंटरव्यू में फुटबॉल इन इंडिया पे क्वेश्चन था कि क्या चैलेंजेस हैं, कैसे प्रमोट करना है, रीजनल ग्रोथ है फुटबॉल में बट नेशनल ग्रोथ क्यों नहीं है, मेरे लोकल स्टेट में ग्रोथ क्यों नहीं है, फुटबॉलिंग फिलोसॉफी में इतना डिफरेंस क्यों है यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में। तो फर्स्ट इंटरव्यू में काफी डेप्थ में पूछा था, सेकंड इंटरव्यू में उतना डेप्थ में नहीं था। सेकंड इंटरव्यू में एक मैम ने एक ही क्वेश्चन पूछा, शी वांटेड टू नो व्हाई इज रोनाल्डो एज पॉपुलर एज ही इज एज अ फुटबॉलर। ओके, मतलब ये भी एक सोचने वाला चीज है, मतलब यूजुअली नहीं तो दिमाग में ये आएगा कि बहुत अच्छा खेलता है या वो है। सो उन्होंने प्रीफेस ही ऐसा करा कि गिव मी अ रीजन व्हिच इज नॉट बेस्ड ऑन हिज स्किल सेट। ओके, डू नॉट आंसर कि ही इज अ वेरी गुड प्लेयर देयरफॉर। वो तो सभी है, हाँ, मतलब वो तो मैक्सिमम लोग हैं। हाँ, तो आपने क्या आंसर करा उसमें? सर एक रीजन जो मुझे उस टाइम एकदम क्लिक किया कि उसने बहुत सारा लीग्स खेला है, इंग्लैंड में, स्पेन में, इटली में, अभी अब सऊदी में। हाँ, तो इसलिए भी उसका फैन बेस बहुत बड़ा है। हाँ, बिल्कुल। एक ये रीजन था, और दूसरा रीजन था कि उसका स्किल सेट तो अच्छा ही है, बट वो स्किल सेट मेंटेन करने के लिए जो उसका हार्डवर्क है वो दैट इज अनमैच्ड इन हिज इंडस्ट्री, फुटबॉलिंग इंडस्ट्री। ही इज द मोस्ट हार्डवर्किंग प्लेयर। हाँ, मतलब हम पढ़ते भी है, न्यूज में भी आता है कि दैट द बायोलॉजिकल एज ऑफ रोनाल्डो इज मच लेस देन द एक्चुअल एज ऑफ रोनाल्डो, और वो जो उसने फिटनेस मेंटेन करके रखी है। अब तो सारे फुटबॉलर्स वहीं जा रहे हैं, मतलब सऊदी वाले, क्योंकि सऊदी ने भी अपना ट्रांसफॉर्म करा है। एंड इट इज वेरी गुड कि दैट अगर वो कल से उसको IR में जोड़ दे कि हाउ सादी इज ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ। तो सर ये एक बहुत, मैंने जब फुटबॉल प्रिपेयर करा था तो ये एक टॉपिक था कि हाउ इज मिडिल ईस्ट यूजिंग स्पोर्ट्स टू वन रीबिल्ड इट्स इमेज एंड टू इन्वेस्ट इट्स कैपिटल। कतर वर्ल्ड कप हो गया, सऊदी अरेबिया और कतर में F1 का भी बहुत सारा रेसेस हो रहा है सर्किट, बहुत सारे F1। तो ऐसे दे आर गेटिंग इनटू स्पोर्ट्स, इन्वेस्टिंग इनटू स्पोर्ट्स, रीबिल्डिंग देयर इमेज टू स्पोर्ट्स। तो ये जैसा आपने अच्छा पॉइंट बोला है कि हम जब डाफ में हॉबी प्रिपेयर करते हैं तो ऐसा कॉम्प्रिहेंसिवली हॉबी प्रिपेयर करना है
बिल्कुल कि फुटबॉल में बस जैसे जनरली क्या होता है, जब मैं प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहा था, फुटबॉल का जो डॉक्यूमेंट कोचिंग्स प्रोवाइड करता है उसमें क्या होता है, फुटबॉल का डायमेंशन, फुटबॉल फील्ड का डायमेंशन, 22 लोग खेलते हैं, एक बॉल के पीछे दौड़ते हैं। क्या होता है, बट इससे ज्यादा है, टॉपिक बहुत बड़ा है फुटबॉल का कि वो आईआर से कैसे रिलेटेड है, इकोनॉमी से कैसे रिलेटेड है, कल्चर से कैसे रिलेटेड बिल्कुल है, बिल्कुल। वैल्यूज से कैसे रिलेटेड है। तो ऐसे कॉम्प्रिहेंसिवली अपने डाफ के टॉपिक्स को जैसे मेरे को पूछना है। एक और चीज याद आई अभी फुटबॉल से ही, एक कोई और स्टूडेंट भी था, वो भी सिलेक्ट हो गया था, उसके भी फुटबॉल हॉबी थी, तो उससे पूछ लिया था कि इंडियन सॉकर लीग चल रहा है ना, तो वो उसमें क्या हो रहा है, बिकॉज वी आर नाउ ब्रिंगिंग न्यू प्लेयर, आउटसाइड प्लेयर्स, कुछ आ रहे हैं, मतलब सारे तो नहीं आ रहे लेकिन कुछ तो प्लेयर आ रहे हैं बाहर से, और उसको एक अच्छी खासी वो भी मिल गई है, पॉपुलैरिटी भी मिल गई है, कि मतलब केरला ब्लास्टर्स हो गया, मोहन बगान हो गया, वो सब चल रहा है वहाँ पे। तो वो मतलब वो वहाँ डेप्थ में घुस जाएंगे, अगर आपने हॉबी मेंशन करा तो वो घुसेंगे, वो ये सिर्फ आपकी कितने की टेबल कितनी होती है, कितने लोग खेलते हैं, वो सब नहीं पूछेंगे। ये तो बात सही है। और गाइडेंस के लिए आपने क्या करा, मतलब कुछ करा, नहीं लिया, क्या करा, खुद से ज़्यादा था? सर प्रीलिम्स का तो मोस्टली मैंने खुद से ही पढ़ा है। ज्योग्राफी में कोचिंग से नहीं, खुद से पढ़ा था। खुद से ही करा। मैंने ज्योग्राफी में और इन्वायरमेंट में पीएमएफ-आईएएस रेफर करी थी। ओके ओके। मेंस में मैंने खुद से पढ़ा था। बाकी सर इंटरव्यू में आपसे और जयकृत सर से हेल्प ली थी लास्ट ईयर, हाँ तो वो उससे एक बार गाइडेंस मिल गई। हाँ, वो तो फिर फॉर्चुनेटली सही बैठ गया, आपने क्रैक कर लिया कि कैसे करना है। वो सर ने एकदम सूटेबल टू मी एडवाइस दी, ये करना है, सब 2-3 चीज थी जो इम्पोर्टेंट लगी। तो मोर और लेस यही ऐसा ही प्रिपरेशन था। अच्छा, कि प्रीलिम्स खुद से पढ़ा। हाँ। टेस्ट सीरीज जो है प्री की या मेंस की, कितने टेस्ट दिए, नहीं दिए, ऑनेस्ट कर सकते, क्योंकि मैंने ऐसे भी लोग देखे जो बिल्कुल टेस्ट नहीं दिए, और ऐसे भी लोग देखे जो बहुत ज्यादा टेस्ट दिए। सर मैं एक्चुअली बहुत कम टेस्ट देता हूँ। हाँ, मेरे को लग रहा था कि बहुत कम। मैं टेस्ट कम देता हूँ सर, प्री के भी मेंस के दोनों के टेस्ट मैंने कम दिए हैं। अच्छा, क्योंकि प्री में सर मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस था, प्री में मेरे को लगी नहीं उतना टेस्ट देने की जरूरत। मेंस में मुझे लगता था कि मेरे को टेस्ट देने चाहिए, मैं टाइम उतने अच्छे से मैनेज नहीं कर पाया टेस्ट में, बट मैं आंसर्स रीड करता था, प्रॉपर कॉपीज वगैरह रीड कर लेता था, क्वेश्चंस रीड करता था, लिखता नहीं था बट फॉर्मुलेट करने की कोशिश करता था आंसर्स। ओके तो मैंने अपनी नोट्स को स्ट्रक्चर वैसे ही करा था, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। ओके ओके। जैसे फॉर एग्जांपल कोट्स कुछ याद कर लिए, हाँ 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 तो टेस्ट देखा, उसमें क्वेश्चन देगा, कोट हाँ। रिकॉल करने की कोशिश करा। मतलब कोई यूनिफॉर्म स्ट्रैटेजी नहीं है, नॉर्मल अगर अपनी स्ट्रैटेजी बना के आपने जैसे इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन में ही सब कुछ बनाया था, हाँ करेक्ट। तो उसको यूसेज करके वो भी एक तरीके के वही है। हाँ, राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी सो दैट यू आर एबल टू कंप्लीट द पेपर इन 3 hours। हाँ करेक्ट, बाकी प्रैक्टिस करनी है। हाँ, बाकी वो कैसे भी आप बनो, ये नहीं कि टेस्ट सीरीज करना ही है या वो करना है, विच कैन चेंज फॉर पीपल टू पीपल। मतलब किसी को, क्योंकि मैंने ये देखा है कि किसी को आंसर राइटिंग नैक होती है, कोई लोग बहुत स्पॉन्टेनियस होते हैं कि हाजिर जवाब, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, कि बोला और हमने जवाब दे दिया, वो सब लोग नहीं होते। वो सब तो शायद उसके लिए, उनके लिए ज्यादा जरूरी है इन दैट दे डेवलप दिस एबिलिटी एंड दैट इज डेवलपेबल। मतलब उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई गॉड गिफ्टेड होता है। तो सर वही है, जैसा आप बोल रहे हो ना, वन साइज फिट ऑल अप्रोच नहीं है। आंसर राइटिंग, इंटरव्यू दोनों में इंपॉर्टेंट है आर्टिकुलेशन। अगर आपका आर्टिकुलेशन अच्छा है तो आपको उतना राइटिंग प्रैक्टिस या मॉक इंटरव्यू की उतनी जरूरत नहीं है। बट अगर आपका आर्टिकुलेशन अच्छा नहीं है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप पढ़ो चीजों को और लिखो, क्योंकि लिखने से आर्टिकुलेशन बहुत अच्छा होता है। और पढ़ते टाइम भी अपने दिमाग में जो पढ़ रहे हो उसको उसी तरीके से एनालाइज करो कि जैसे मैं कुछ भी पढ़ रहा हूँ तो मैं उसको किसी कैटेगरी में क्लासिफाई कर रहा हूँ, उस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई आर्टिकल पढ़ रहा हूँ तो ये जो मैंने अभी 2 लाइन पढ़ी, ये इस पर्टिकुलर टॉपिक का इशू है, सोल्यूशन है, वे फॉरवर्ड है, डेटा है, किस कैटेगरी में आता है ये। ओके। तो ऐसे पढ़ते टाइम उसको कॉम्प्रिहेंसिवली आप एनालाइज करें तो आर्टिकुलेशन इंप्रूव होगा। ओके ओके। बस एक लास्ट क्वेश्चन कि जैसे आपने खुद ही पूरा प्रिपेयर करा है ना, हमने थोड़े लेवल पे गाइडेंस करा, कहीं कहीं आपने और भी गाइडेंस लिया, उसमें वो नहीं है मेजरली क्योंकि आपने खुद करा है। व्हाट इज योर एडवाइस फॉर द स्टूडेंट जस्ट हु आर अपियरिंग आफ्टर 1 week, 25 मई को जो एग्जाम देने जा रहे हैं प्रीलिम्स के? हाँ, उसके लिए क्या है कि क्या करें अब लास्ट मोमेंट्स में, इन 7 दिनों 8 दिनों में जितने बचे हैं अब? सर होपफुली वो ये पॉडकास्ट नहीं देख रहे होंगे। हाँ, ये तो बहुत अच्छी चीज है। अभी अगर देख रहे हैं तो दिक्कत है। हाँ, प्रिपरेशन में कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल। बट सर मेरे को लगता है कि प्रीलिम्स में इस दोनों में मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट के जो 1 हफ्ते होते हैं, इसमें जितना इन्फॉर्मेशन क्रैम होता है, इसका रिकॉल वैल्यू सबसे हाई है। बिल्कुल बिल्कुल रिसेंसी बायस है, जो अभी पढ़ेंगे वो एकदम से याद आ जाएगा। आएगा। बिल्कुल। तो ये लास्ट
का एक हफ्ता सबसे इम्पोर्टेंट है। आप हाँ। 18 घंटे पढ़ो, हाँ, बस कुछ पढ़ते रहो, अपने सामने से कुछ निकालते रहो। हाँ, अभी क्योंकि- के वक्त मत हाँ। करो जब आपको लग रहा हो कि यार ये नहीं करा। क्योंकि अभी सबसे ज्यादा थॉट्स भी आते हैं, एंग्जाइटी वाला थॉट भी सब, हाँ। एंग्जाइटी भी तो हाईएस्ट लेवल पे होती है अभी, परफॉर्मेंस भी हाईएस्ट लेवल पे, एंग्जाइटी भी हाईएस्ट लेवल पे। हाँ, ओवर थिंकिंग भी अभी सबसे हाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी अभी सबसे ज्यादा गिर जाती है, जबकि अगर अभी ज्यादा रहे तो इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होगा। If you are efficient in the last 1 week, the impact of this efficiency is much more than your efficiency 2 weeks back. बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी बस वही रिवाइज करते रहें। रिवाइज करो और पढ़ते रहो बस। हम्म। जो आपके नोट्स है रिवाइज करते रहो। जो चीज आपको लगता है ज्यादा मेमोरी डिमांड करती है, एज फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री हो गया, ये इन्वायरमेंट का स्टैटिक पार्ट हो गया, पॉलिटी में कुछ कुछ फैक्चुअल चीज हो गई, ज्योग्राफी में रिवर्स लोकेशन बेस्ड फैक्चुअल चीजें हो गई। ओके, ये सब चीजें अभी रिवाइज करो जो एकदम मेमोरी बेस्ड है। हाँ। तो ठीक है, ये तो बढ़िया रहा कि मतलब हाँ लास्ट में यही करना है। हाँ, और जो हमारे जैसे हमने लास्ट में रिवाइज कर लिया, ठीक है, सब कुछ हो गया, उस दिन क्या है, प्रीलिम्स के दिन क्या है, क्योंकि आधे से ज्यादा मैंने देखा है कि वहां पे गए, वहां पे 2-4 क्वेश्चन लाइन से नहीं बने, और फिर ऐसा लगता है कि बस अब खत्म। ये होता है ना कि 1-2 पेज नहीं बने, हमारे टाइम पे भी ये होता है, 2 पेज नहीं आ रहे, अब तो नहीं होगा। लेकिन जैसे प्रीलिम्स का नंबर इस बार सब बोले 95 जाएगा, कट ऑफ आया 87 आया, तो उसमें मतलब वहाँ कैसे काम रखना है लास्ट में? सर टेम्परामेंट इम्पोर्टेंट है, खासकर प्रीलिम्स के पेपर में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस पेपर में थोड़ा एक टाइम क्रंच ज्यादा इम्पैक्ट करता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम थोड़ा डर जाते हैं पेपर में। तो मेरे पास कोई इसका सोल्यूशन नहीं है कि टेम्परामेंट कैसे बिल्ड हो सकता है एग्जाम में, बट मेरे को प्रैक्टिस है क्योंकि मैं जेईई की प्रिपरेशन करी है। बिल्कुल। तो उससे मेरा एमसीक्यू वाले एग्जाम्स के लिए थोड़ा टेम्परामेंट बिल्ड हो गया। हाँ। बट अगर किसी को लगता है इंडिविजुअली कि टेम्परामेंट नहीं है एग्जाम देने का, तो प्रॉब्ली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से गाइडेंस लो, मेडिटेट करो। बट जो भी है उस एग्जाम में कूल रखना बहुत, whatever keeps you calm, हाँ, whatever keeps you calm, figure out your own strategy, हाँ, but you have to know that you have to just get 100 marks. 200 marks का पेपर है, बिल्कुल। you are not there to score maximum marks, you just need 100 marks in order to qualify. तो मतलब जैसे लाइफ में है ना, शॉर्ट टर्म गेन्स और लॉन्ग टर्म पेन, बिल्कुल, तो आपको एक ब्रॉडर पिक्चर लेके चलना है। मैं एकदम अभी का नहीं देखूंगा, आज से 10 साल बाद का भी अभी प्लान करूंगा। तो पेपर देने से पहले ही पता है कि अपने को 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और 100 मार्क्स लाने हैं। तो अगर आप रैशनलाइज कर लो अपने दिमाग में, मेडिटेशन, ब्रीदिंग कंट्रोल के थ्रू इमोशनली अपने आप को कंट्रोल कर लो। अगर आपका टेम्परामेंट नहीं है, मॉक्स के थ्रू बिहेवियर में ले आओ। तो आई थिंक ये 3 स्ट्रेटजीज हैं, कॉग्निटिवली, इमोशनली एंड थ्रू योर बिहेवियर यू कैन बिल्ड योर टेम्परामेंट। आई डिडंट नीड टू डू इट स्पेसिफिकली बिकॉज आई डिड इट when I was preparing for JEE, but I did it, and that is why I have the temperament now. But जिन लोगों ने नहीं करा है, they should give mocks and they should build this temperament. और more specifically कि आंसर सामने है, मतलब you just have to pick it up, and you will be picking it up when you are calm. If you are not calm, तो वो तो आता हुआ भी गलत हो जाएगा। वो कोई बोलता है ना, OMR में गलत मार्क कर दिया सर, A की जगह B कर दिया सर, वो इसलिए होता है क्योंकि आप पैनिक में हो और आपने सही आते हो स्टेटमेंट, वही घर आके देखते तो वो बन जाता है। तो सर कुछ ऐसा इंडिकेशन है जो मेरे को लगता है इन एक्सपीरियंस, जिनके थ्रू आप असेस कर सकते हो आप काम होगी नहीं। फॉर एग्जांपल आपका प्रीलिम्स पेपर में राइटिंग कैसा है, अगर आप क्वेश्चन को मार्क कर रहे हो या उस पर जो भी लिख रहे हो, इट इज मोर हचपॉच देन यू जनरली आर, तो मतलब आप इतने काम नहीं हो। बिल्कुल। तो कितना लेजिबल है आपका राइटिंग, आप क्वेश्चन को कितना नीटली क्रॉस कर रहे हो जिसे अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, कीवर्ड्स को कितने इंपॉर्टेंट से अंडरलाइन कर रहे हो, सारे ऑप्शंस पढ़ रहे हो कि नहीं, ऑप्शन पढ़ते टाइम टॉपिक मतलब कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड पर अंडरलाइन कर रहे हो कि नहीं। बिल्कुल। पेन के थ्रू आप कितना अपना वो काम कर सकते हो, थ्रू योर फिंगर्स थ्रू राइटिंग, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट शोज थ्रू योर पेपर। तो वो भी अपन प्रैक्टिस कर सकते हैं ऐसे टूल्स के थ्रू कि कैसे टेम्परामेंट कूल रखें ड्यूरिंग एग्जाम। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, है ना, फाइनली ये जर्नी एकदम अपने राइटफुल कंक्लूजन पे आई एंड इट फील्स वेरी गुड व्हेन अ स्टूडेंट गेट्स सिलेक्टेड, जिसको थोड़ा भी हम लोग हेल्प कर पाए तो वो सही लगता है। वी आर वेरी हैप्पी टू यू एंड जयकृत सर भी, इतना ऑनेस्टली और इतना पर्सनली, मैंने तो आप ही लोगों के पास आया सबसे पहले, बट आई डोंट नो वेदर इतना इस कोचिंग इंडस्ट्री में उतना पर्सनल टच और खुद का स्टेक्स होता है कि नहीं, बट मेरे को पर्सनली बहुत टचिंग लगा। नहीं, वो हमारा यही रहता है ना कि हम लोग मतलब वी मिस्ड इट बाय सम मार्जिन, वी मिस्ड इट बाय समथिंग, सो वी डोंट वांट कि दैट जो सामने इतना एफर्ट डाल के आया, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट,
when you continue it for 4-5 attempts, तो उसके बाद लगता है कि बस अब इसका हो जाए, Yes, sir, true. है ना? तो वो एक कंक्लूजन अच्छा हो, हैप्पी एंडिंग सबको अच्छी लगती है कि हैप्पी एंडिंग हो गई है, तो सही है। ठीक है अद्वैत, कॉन्ग्रेचुलेशन, Thank you, sir. मिलते हैं। Thank you. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।